Hello everyone, welcome to the Diligent Learners. In this video, we will be continuing with the series on Indian economy for the upcoming UPSC CSE preliminary examination. So in this video, we will be covering insurance, pension and financial inclusion. So first of all, we look at the definition of insurance, its meaning and significance. So insurance policy is basically a debt instrument or a legal contract against eventualities of death or damage. तो वही होगा इसमें कि डेट इंस्ट्रूमेंट या लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि in case a person undergoes some either death or some damage या कुछ accident हो जाता है then they will be repaid some money. ठीक है, and in order to purchase this contract they have to pay a premium, regular installments, ये सब करना पड़ता है and then they'll get this contract. ठीक है, so you should be knowing this definition कि it is a debt instrument or a legal contract against certain eventualities like death or damage. ठीक है, next we'll be looking at insurance principles. So these are the insurance principles which exist. This is important again, है ना. सबसे पहले होता है the principle of good faith. मतलब कि insurance company as well as the person who's buying the insurance, they should disclose everything fully and no information should be hidden. ठीक है. Then next we have indemnity. Indemnity में क्या रहेगा? Their compensation will be provided for actual loss, not imagined loss. ठीक है. फिर है subrogation. Subrogation refers to the insurer's right to recover from negligent third parties. ठीक है. तो subrogation में होगा कि third party से if you want to recover money, that can also be done. Next है causa proxima. That means there should be a direct link between the loss and the insured event. ठीक है. And then the last thing which we have is insurable interest. So the client must have a financial interest in the insured item. For example, ऐसे नहीं कि मैंने जैसे Murnal's, these are Murnal sir's notes only. I have just summarized them. So he had given an example कि ऐसे नहीं कि आपने अमिताभ बच्चन का लाइफ इंश्योरेंस खरीद लिया. ठीक है, देयर इज़ नो लिंक बिटवीन यू एंड अमिताभ बच्चन जी. ठीक है, तो वो नहीं कर सकते. दे मस्ट हैव, द क्लाइंट मस्ट हैव अ डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द इंश्योर्ड आइटम. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज. फर्स्ट ऑफ ऑल गुड फेथ. फिर इंडेमनिटी. इंडेमनिटी मतलब एक्चुअल लॉस के लिए करेंगे कॉम्पनसेशन, नॉट फॉर imagined loss. Then we have subrogation, then causa proxima and insurable interest. ठीक है. So wait a second, let me check insurance principles. Uh, so wait, utmost good faith में क्या रहेगा? Both the parties will disclose all the material facts honestly. ठीक है. Then we have insurable interest. उसमें रहेगा कि the insured must have a financial stake in the subject matter, as I just told you, and I also gave an example. फिर indemnity. तो इसमें क्या है? Compensation will be for the exact amount of the loss and it will put the person back in the same financial position as before the loss. ठीक है, without allowing any profit. तो it will be, the compensation will be for the exact amount of the loss. ठीक है, actual loss के लिए and for the exact amount as well. यहाँ पे I'll just write it down. For the exact amount. ठीक है. Then subrogation. Subrogation में होगा after paying a claim, the insurer takes over the insured's
legal right to recover that amount from any third party responsible for that loss. ठीक है, तो वही कि insurer will be having the right to recover from the third party who's who might be involved in, or he might be the reason for the loss. ठीक है, नेक्स्ट इज वही कॉजा proxima. Causa proxima में वही है कि when a loss occurs the closest or the most direct cause is to determine, मतलब there should be a direct link between the cause and the loss. ठीक है, loss and insured event में there should be a direct link. Next, हाँ बस these are the main इंश्योरेंस प्रिंसिपल. इनके अलावा एक लॉस मिनिमाइजेशन का भी मानते हैं, बट नॉट, हाँ देखो, लॉस मिनिमाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन होता है कि द एवरी नेसेसरी स्टेप हैज़ टू बी टेकन टू मिनिमाइज द लॉस टू द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी. ठीक है, तो वो भी होना चाहिए. और एक होता है इंश्योरेंस प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन. इसमें क्या है, इफ़ द इंश्योर्ड हैज़ मल्टीपल पॉलिसीज फॉर द सेम रिस्क देन ऑल द इंश्योरर्स विल बी शेयरिंग द लॉस प्रोपोर्शनली. मतलब जैसे कि कोई भी एक्सीडेंट इंश्योरेंस लिया हुआ है एंड यू हैव टेकन द सेम इंश्योरेंस फ्रॉम 3 पार्टीज. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि दे विल गेट 3 times द कॉम्पनसेशन. नहीं, ऑल द 3 विल बी शेयरिंग द इंटायर लॉस. ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि 3 बार सेम अमाउंट ऑफ मनी विल बी गिवन. इंस्टेड शेयर कर लेंगे वो टोटल अमाउंट ऑफ मनी को. ठीक है, तो वही यू नीड टू रिमेंबर दीज. वैसे इवन इफ यू डू नॉट रिमेंबर देम इन अ, मतलब ऐसे अपने आप यू आर नॉट एबल टू रिकॉल, स्टिल यू शुड बी एबल टू रिकग्नाइज दीज इन केस इन क्वेश्चन इज आस्क्ड. ठीक है, तो यू शुड बी एबल टू रिकग्नाइज द ऑप्शन. ठीक है, तो वही गुड फेथ, इंडेमनिटी, सब्रोगेशन, कॉजा प्रोक्सिमा एंड इंश्योरेबल इंटरेस्ट. इसके लिए ना देयर इज़ अ mnemonic also which exists for learning the information, insurance principles. I'll just tell you about the mnemonic. It is, यहाँ लिख देती हूँ. Good Indians, good Indians invest carefully, invest carefully, secure proper losses, secure proper losses. ठीक है, तो इसमें एज यू माइट बी एबल टू सी, जो गुड है, गुड स्टैंड्स फॉर ये वाला प्रिंसिपल फॉर ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ. ठीक है, देन वी हैव इंडियंस और इन्वेस्ट. सो आई और आई विल बी स्टैंडिंग फॉर एक तो इंडेमनिटी वाला एंड एक वन विल बी इंश्योरेबल इंटरेस्ट. ठीक है, देन वी हैव केयरफुली, केयरफुली के लिए कॉजा प्रोक्सिमा. ठीक है, नहीं, केयरफुली यू लर्न इट विद कंट्रीब्यूशन. ठीक है, फिर सिक्योर का जो एस है दैट स्टैंड्स फॉर सब्रोगेशन. देन प्रॉपर के लिए कॉजा प्रोक्सिमा. ठीक है, देन वी हैव लॉसेस, लॉसेस के लिए लॉस मिनिमाइजेशन. ठीक है, तो दैट इज़ हाउ यू कैन रिमेंबर ऑल ऑफ दीज. So in case you want to use it somewhere in mains, वैसे there is very less chance that you will get to use this particular topic in the mains examination, but just remember it for that purposes. ठीक है, for that purpose. Now we'll move to the history of insurance in India. So सबसे पहले in 1956 the LIC Act came about, wherein nationalization of life insurance companies was done. ठीक है, देन 1972 में GIC एक्ट के वॉज एनैक्टेड, जहाँ पे नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनीज वाज डन. ठीक है, सो बोथ ऑफ दीज आर इम्पोर्टेंट एंड यू नीड टू रिमेंबर द ईयर्स एज वेल. क्या क्या हुआ 1956 में और 1972 में. तो इसको कैसे लर्न करेंगे, देखो 1955 में
SBI was nationalized, if you might be knowing, है ना. उसी के अगले साल they nationalized the life insurance companies. ठीक है. और उसके how many years later, um 16 years later I think, है ना. 16 years later they nationalized, 16 नहीं, 18 years later हो गया. हाँ नहीं, 16 years later they nationalized GIC. 1972 में GIC. ठीक है. सो दैट इज़ हाउ यू कैन रिमेंबर दिस कि SBI से आप लिंक कर लो, एंड देन यहाँ पे 16 ईयर्स का टाइम पीरियड है दोनों के बीच में. ठीक है. सो ये हो गया. देन रिफॉर्म्स देख लेते हैं. सो मल्होत्रा कमिटी had recommended some reforms. It allowed private insurance companies and liberalized FDI. तो when did this come? 1993. 1991 में ही क्या हुआ था? LPG reforms. ठीक है. So in line with those, 1993 में the private insurance companies were also allowed to come to this insurance sector, and जो FDI था, foreign direct investment in insurance sector, that was also liberalized. ठीक है. देन वी हैव मल्होत्रा. वेट, अभी इसको लर्न करना है. मल्होत्रा कमिटी. तो इसको कैसे लर्न करेंगे? मल्होत्रा. इसको आप डिवाइड कर लो. मल्होत्रा मतलब कि समवन हु हैज़ मनी. तो समवन हु हैज़ मनी विल नेचुरली टेक एन इंश्योरेंस. will naturally टेक इंश्योरेंस. ठीक है. तो वैसे करके लर्न कर सकते हो. मालहोता या मल्होत्रा. ठीक है. और 1993, दिस इज़ वेरी क्लोज टू 1991 LPG रिफॉर्म्स. ठीक है. नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट द सेफ गार्ड्स. सो हाँ, वही इनके लिए भी दे हैव CRR, SLR. They also have to follow Basel norms. Then there are certain investment patterns which they need, insurance companies need to follow, and solvency margin का भी रहता है. ठीक है. So we'll read about that later properly. Then financial inclusion देख लेते हैं. So वही financial inclusion के लिए there are certain rural and social obligation norms provided, whereby जो insurance companies हैं they have to diverse a portion of their insurance to rural areas या certain priority sector areas. ठीक है. बस उतना ही है. और फिर इसमें देख लेते हैं कि इंश्योरेंस के इंटरमीडियरीज कौन होते हैं. सो वी हैव एजेंट्स, ब्रोकर्स, banks, that is bank assurance. Bank assurance मतलब insurance which is being offered by a bank. ठीक है. So certain banks also offer insurance policies. That entire thing is known as bank assurance. Then we have surveyors, then third party administrators. ठीक है. All of these are present. Next delivery channels देख लेते हैं. There are bank branches and business correspondence agents. ठीक है. तो दोनों रहते हैं डिलीवरी चैनल्स में. नेक्स्ट, अगर बैंक ब्रांचेस रहेगा तो इट विल बी नोन एज बैंक अश्योरेंस. ठीक है. एंड जो नॉर्मल डिलीवरी चैनल इज वाया बिजनेस करस्पॉन्डेंस एजेंट्स. ठीक है. नेक्स्ट वी विल बी लुकिंग एट टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस. सो देयर आर द फॉलोइंग टाइप्स विच आर प्रेजेंट. वी हैव होल लाइफ और एंडोमेंट, टर्म लाइफ इंश्योरेंस एंड यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स एज वेल. सो जो होल लाइफ होता है या एंडोमेंट बोलते हैं उसको, इन दिस द मनी विल बी रिटर्न एट मच्योरिटी और एट डेथ. ठीक है. सो एज द नेम सजेस्ट, होल लाइफ के लिए रहेगा. टर्म लाइफ में क्या रहेगा? मनी विल बी रिटर्न ओनली एट डेथ एंड दस इट विल बी हैविंग अ लो प्रीमियम. ठीक है. तो जब तक मरेंगे नहीं तब तक यू वॉन्ट बी गेटिंग योर मनी बैक.
वेराज होल लाइफ में मनी विल बी रिटर्न एट मच्योरिटी ऑल्सो, मतलब ज़रूरी नहीं है कि इट विल बी गिवन ओनली एट डेथ। ठीक है, सो दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर कि एंडोमेंट जो रहता है या जो दिस वन होल लाइफ इंश्योरेंस रहता है, इन दैट केस वही एंडोमेंट इज ऑल्सो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ओनली। ठीक है, वही आई वाज जस्ट चेकिंग दिस ईयर। तो इसमें लमसम पे आउट रहता है ना। इस केस में क्या रहेगा, होल लाइफ या एंडोमेंट पॉलिसीज में देयर विल बी अ lump sum payment that will be done either at maturity or at death. Whereas in the case of term life policy, money will be returned only at death and the premium will be low. Next है unit linked insurance plans. इसमें क्या होगा, it will be part insurance and part mutual fund. ठीक है, और मनी कब रिटर्न करेंगे, इट विल बी रिटर्न आइदर एट मैच्योरिटी और डेथ। इसको कैसे लर्न करेंगे, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स, मतलब यूनिट लिंक्ड। ठीक है, सो अ पोर्शन ऑफ दैट मनी विल बी इन्वेस्टेड इन यूनिट्स। तो यूनिट क्या होते हैं, यूनिट्स आर जनरली प्रोवाइडेड इन म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर दिस। नाउ टर्म लाइफ को हम लोग कैसे रिमेंबर करेंगे कि दिस इज ओनली गिवन व्हेन द लाइफ टर्म इज ओवर, ओनली गिवन, मतलब money is returned only when the life term is over। ठीक है, नेक्स्ट है होल लाइफ और एंडोमेंट, मनी विल बी रिटर्न एट बोथ मैच्योरिटी और एंड डेथ। ठीक है, सो फीचर्स क्या है वही, अगर होल लाइफ या एंडोमेंट में क्या होगा, प्रीमियम अगर देखो क्या वही दिया है कि होल लाइफ और एंडोमेंट पॉलिसी में इवन इफ द पर्सन इज अलाइव, then also the money can be returned provided the maturity date has been it has come up। ठीक है, नेक्स्ट है होल लाइफ और एंडोमेंट में क्या और डेथ बेनिफिट होता है, हाँ मैच्योरिटी बेनिफिट होता है, वो भी होता है। ठीक है, टर्म लाइफ पॉलिसी में क्या होता है, रिटर्न्स विल नॉट बी गिवन इफ द पर्सन इज स्टिल अलाइव। ठीक है, ओनली इफ द पर्सन डाइज ओनली देन दे विल बी गेटिंग मनी, मतलब उनके जो भी रिश्तेदार हैं उनको डेथ बेनिफिट है, बट देयर इज़ नो मैच्योरिटी बेनिफिट एज सच। ठीक है, तो ये जो ऊपर दिया है उसी को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दिया है इधर। नेक्स्ट वी विल बी लुकिंग एट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज प्रोवाइडेड बाय पब्लिक सेक्टर्स, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं ये सब, the life insurance policies provided by them. So first of all we have post office life insurance। ठीक है, इसको PLI भी बोलते हैं, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस भी बोलते हैं। इट इज़ अवेलेबल टू गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर एंड स्पेसिफिक प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, दर्पण, नहीं एग्जाम्पल नहीं है दिस, देयर इज़ एन ऐप ऑल्सो फॉर डिजिटल एक्सेस, इट इज़ नोन एज दर्पण। ठीक है, तो जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है वो प्राइमरीली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है एंड स्पेसिफिक प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ कैन ऑल्सो बाय दिस। ठीक है, और दर्पण मतलब इसको लर्न कैसे करेंगे कि आप ऐसे सोचिए कि लाइफ इंश्योरेंस है पोस्टल, तो आप दर्पण का लिटरल मीनिंग शायद मिरर होता है ना, तो इसको लिंक कर लो मिरर से कि किसी ने अपने आप को मिरर में देखा और फिर सोचा कि जैसे एड्स नहीं आते इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के, ऐसे देखा मैं मर जाऊंगा तो फिर क्या होगा पीछे सब लोगों का। ठीक है, तो वैसे करके आप सोच लो, ऐसे मिरर में देख के उसने ऐसे ऐसे इंट्रोस्पेक्ट वगैरह करने लग गया एंड देन ही वेंट एंड बॉट द पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, तो मिरर में देख के घर पे मिरर में देख रहा था और करने सोचने लग गया ना, दैट इज़ वाई ही डिड नॉट हैव टाइम टू गो, और उन्होंने बाय पोस्ट नहीं, बाय द पोस्टल जो भी ऐप है ना उनका PLI का, उससे ही बॉट दैट इंश्योरेंस, PLI's ऐप। ठीक है, वैसे करके यू कैन रिमेंबर दिस। ठीक है, तो दर्पण PLI ऐप फॉर डिजिटल एक्सेस ऑफ
postal life insurance. Then we also have rural postal life insurance. This is primarily for villagers with schemes like Gram Suraksha. ठीक है, and it was started from 1995. So इसको कैसे लर्न करेंगे? 1993 में दे हैड अलाउड प्राइवेट सेक्टर इन द लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर, है ना, मतलब इंश्योरेंस सेक्टर में इट वाज लिबरलाइज्ड। ठीक है, उसके बाद में 2 साल बाद में रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस वाज आल्सो सेट अप इन ऑर्डर टू इंश्योर फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, तो बस वैसे करके लर्न कर लो। Next, we'll be looking at post office services such as G2C and B2C. ठीक है, G2C में क्या रहेगा? गवर्नमेंट टू सिटीजन, और B2C विल बी हैविंग बिजनेस टू सिटीजन्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट टू सिटीजन्स में क्या रहेगा? द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री फसल बीमा। ये बहुत जेनरिक से टॉपिक है, इसमें बस वही दिया है कि हम पोस्ट ऑफिस के क्या क्या सर्विसेज होते हैं, है ना। So there are two types of services: government to citizen and business to citizens. I'm sorry, हाँ, business to citizens. तो government to citizens में क्या करेगा? The post office will be providing application forms for various government schemes like Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, etc. Then it will issue PAN cards, e-KYC, election card की printing, e-stamping. All of these services will be available. Apart from that, Bharat Bill Payment System can be, it is also operated by post office services. ठीक है, then business to citizens में क्या रहेगा? Renewal of premium collection for life insurance and general insurance, so that can also be done at post offices. ठीक है, so these are the services which are being offered by post office. ठीक है, so not very important, बस थोड़ा सा पता होना चाहिए। नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1956. It is a statutory corporation which was formed under the Life Insurance Corporation Act of 1956. ठीक है, तो 1956 में ही वो हुआ था नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, सो दैट इज़ वाई दिस इज़ मेंशन्ड हियर। तो हाउ डू यू लर्न दिस? वो मैंने बताया था कि 1955 में SBI was nationalized, and then later in 1956 LIC was, the life insurance system was nationalized in the country. And general insurance कब करा था? 1972 में जाके that was also nationalized. ठीक है, then we have headquarter कहाँ पे LIC का? Again this is also in Mumbai. So major financial regulators like and financial bodies like SEBI, RBI, all of these are centered at Mumbai. ठीक है, so that is one reason why Mumbai is considered to be the financial capital of the country. ठीक है, हेडक्वार्टर है मुंबई में। देन मैगजीन का नाम क्या है? योगक्षेम, एंड इनका जो मोटो है LIC का, इट इज़ योगक्षेमम, योगक्षेमम वहा महायम। ठीक है, इसका मीनिंग आई जस्ट टेक, क्या होता है योगक? सो मीनिंग है इसका, इट इज़ अ कोट फ्रॉम भगवद गीता। ठीक है, और इसमें इनका मीनिंग है, इट इज़ Lord Krishna's promise in Bhagavad Gita. So it says कि I will supply whatever my devotees lack and I will preserve whatever they have. ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है। ठीक है, and this has been taken from Bhagavad Gita. So you need to know कि कहाँ से लिया गया है। This was from Bhagavad Gita. ठीक है, now we'll be looking at LIC regulation. So LIC is regulated under the Life Insurance Corporation Act of 1956. Apart from that, Insurance Act of 1938 and the IRDAI Act of 1999. Okay, so these three are the ones whereby LIC is regulated. ठीक है, देन है LIC's आम आदमी बीमा योजना। So this was launched in 2007. This is primarily
for below poverty line and above poverty line citizens in various occupations. Benefits क्या है, death पे they'll be getting around 30,000 rupees. In case of a disability, they'll get 37,500 to 75,000 rupees depending upon the premium. ठीक है. Then child scholarship कितना है, 1200 रुपये per year. और premium is shared by both the government as well as the beneficiary. So this is extremely important कि premium कौन pay कर रहा है, it is both the government as well as the beneficiary. ठीक है. So that is all for this. Next देख लेते हैं. हाँ, LIC's disinvestment in 2020. So government sold nearly 5% of its shareholding through an IPO in 2022. ठीक है. ये हुआ था. दिस वॉज नोन एज द डिसइन्वेस्टमेंट बाय LIC ऑफ LIC. ठीक है. तो 5% शेयर होल्डिंग वॉज सोल्ड. सो दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. यू जस्ट नीड टू नो कि डिसइन्वेस्टमेंट ऐसे होता रहता है and the difference between disinvestment and privatization. So, when disinvestment is being done, the government will continue to hold at least 51% of the shares of that company, yeah, public sector enterprise. Whereas when privatization is done, then it becomes lesser than 51%. ठीक है. तो लेसर दैन 51 हो जाएगा, दैट मीन्स प्राइवेटाइजेशन हो गया या स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं उसको. ठीक है. नेक्स्ट वी विल बी लुकिंग एट प्राइम मिनिस्टर स्कीम्स फॉर लाइफ एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस. नाउ प्राइम मिनिस्टर स्कीम्स फॉर लाइफ एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस. सो एक तो these the first scheme which we need to study here is प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना. ठीक है. इसमें क्या रहेगा, द एज लिमिट विल बी फ्रॉम 18 to 15 years of age, and this is a life insurance. as the name suggests, it's a life insurance. देखो जीवन ज्योति का है तो लाइफ इंश्योरेंस हो जाएगा. ठीक है. एंड प्रीमियम कितना है, अराउंड 436 रुपीज़ पर ईयर. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना. इसमें डेथ बेनिफिट कितना मिलेगा इन केस समवन डाइज, इट विल बी अराउंड 2 लाख रुपीज़. ठीक है. सो जस्ट लेट मी चेक इफ द प्रीमियम इज करेक्ट हियर. हाँ ठीक है, 436 रुपीज़ रहेगा पर एनम पर सब्सक्राइबर. ठीक है. So again we need to remember all of these. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना. जीवन ज्योति मतलब लाइफ से रिलेटेड कुछ भी रहेगा, है ना. So the age limit to enter into this insurance scheme is from 18 till 50 years of age. ठीक है. तो इसमें आप याद रखना कि रिटायरमेंट एज कितनी होती है, नॉर्मली 60 ईयर्स होती है. उससे भी 10 ईयर्स पहले जीवन ज्योति बीमा योजना का एज लिमिट है. ठीक है. सो दिस इज 10 ईयर्स बिफोर रिटायरमेंट. ठीक है. देन वी हैव डेथ बेनिफिट कितना मिलेगा इसमें, 2 लाख रुपीज़ का. सो 2 लाख में क्या आएगा, कार भी इतना आजकल आता नहीं है, स्कूटी भी आती है बस इतनी की आजकल, है ना. 2 व्हीलर आएगा 1.5 2 lakhs का. ठीक है. सो दैट इज़ हाउ यू कैन रिमेंबर दिस कि 2 व्हीलर खरीद पाएंगे अगर कोई. दिस इज़ जस्ट फॉर लर्निंग पर्पसेस कि ऐसे किसी का डेथ हो गया तो उनके फैमिली मेम्बर्स दे कैन बाय अ 2 व्हीलर विद द मनी विच दे विल गेट बाय प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वी हैव प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना.
So now the age limit for entering into this scheme will be from 18 to 37 years. Sorry, 70 years. Suraksha Bima Yojana है. So this will be accidental insurance, not life insurance. ठीक है. इसका नाम ही, the name itself is self explanatory. ठीक है. सुरक्षा बीमा योजना मतलब is primarily for accidents, accidental insurance. ठीक है. सो प्रीमियम कितना रहेगा इसका? इज़ वेरी लेस. इट इज़ 20 रुपीज़ पर ईयर. ठीक है. एंड सुरक्षा, just wait a second, I need to check whether the premium given here is right or not. हाँ वही है, 20 रुपीज़ ही है. So this is quite less, and in case of an accidental death, the person will be getting around rupees 2 lakhs. ठीक है. And this will be excluding any sort of suicide and alcohol or drug related deaths जो अपने आप से cause हो रहे हैं. Those will be excluded here. ठीक है. और इसमें बस इतना ही याद रखना है. You need to remember the age limit. So this is 10 years more than the retirement age. The retirement usually it is around 60 years है ना. So कितना हो जाएगा? 60 years, that is retirement age plus 10 years. ठीक है. सो इट इज़ एन एक्सीडेंटल इंश्योरेंस. रिटायरमेंट एज के 10 साल बाद इज़ द एज लिमिट, दैट इज़ 70 ईयर्स की एज पे. द एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है दैट विल बी अराउंड 20 रुपीज़. ठीक है. और यहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट कितना रहेगा? 2 लाख रुपीज़, 2 लाख. एंड इट विल बी एक्सक्लूडिंग सुसाइड, अल्कोहल और ड्रग रिलेटेड डेथ्स. ठीक है. सो यू नीड टू रिमेंबर द प्रीमियम्स एज वेल. यहाँ पे कितना था? 436. तो इसको कैसे लर्न करेंगे? 3 4 5, 1 2 3 4 5 होता है ना. सो 3 4 और यू जस्ट स्किप 5 एंड गो टू 6 डायरेक्टली. ठीक है. और यहाँ पे बस 20 रुपीज़ में कुरकुरे आ जाता है. सो कुरकुरे के प्राइस पे यू विल बी एबल टू get an accidental insurance worth 2 lakh rupees. So in case of an accident, they'll be giving you 2 lakh rupees. ठीक है. Next we will be looking at general insurance. So general insurance consists of insurance policies other than life insurance. For example, health, crop, vehicle, इन सब का जो अगर इंश्योरेंस लेना होता है that will be known as general insurance. ठीक है. So जनरल इंश्योरेंस बिजनेस अमेंडमेंट बिल 2021 में आया था. जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट बिल ऑफ 2021. So it aims to facilitate privatization of public sector general insurance companies. ठीक है. facilitate privatization of public sector general insurance companies primarily. So इसमें होगा इट विल रिमूव द रिक्वायरमेंट फॉर द गवर्नमेंट टू मेंटेन मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग. मतलब वही. तो इट एम्स टू प्रमोट प्राइवेटाइजेशन ऑफ दीज कंपनीज. सो हाउ डू यू रिमेंबर दिस? देखो 2021 जनरल इंश्योरेंस बिजनेस अमेंडमेंट बिल 2021 का है. 2021 में 1 है, 1 और प्राइवेटाइजेशन में भी आई होता है. ठीक है. बोथ ऑफ दीज आर सिमिलर. So maybe that is how you can remember this. ठीक है. Next we have seasonal establishment, casual worker and other terms. So seasonal establishment is an establishment which operates only part of the year. ठीक है. It is not covered by employee states um, insurance company. ठीक है. In employee states insurance corporation will not be covering seasonal establishments. तो एग्जाम्पल्स क्या है सीजनल इस्टेब्लिशमेंट्स के? एनीथिंग विच कम्स इनटू प्ले ओनली सीजनली. तो जैसे परहैप्स द क्रैकर इंडस्ट्री इन इंडिया कब आता है? दिवाली के टाइम पे ओनली इट बिकम्स वेरी, मतलब दैट विल बी द
time when there will be major demand. ठीक है, so it may be considered as a seasonal establishment. वैसे ही और there will be better examples of seasonal establishments as well. So you just need to know कि meaning क्या होता है, that it operates only a part of the year. Then we have casual worker. So casual worker is someone who is employed for short periods of time. ठीक है, so they are covered by employee state insurance corporation and employee provident fund organization as well. So this is very important कि जो seasonal establishments है, they are not covered by ESIC, but casual workers they are covered by them. ठीक है, इनके लिए ही other terms are unorganized sector workers, organized sector, informal workers. ठीक है, ये सब अच्छा, आई एम सॉरी अबाउट दिस, इनके लिए नहीं है वो. दीज आर अदर टर्म्स विच यू मे वांट टू स्टडी अलग से. और दीज आर फेयरली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स. तो जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर विच इज़ नॉट अंडर, मतलब ऑर्गेनाइज नहीं है, नॉट अंडर एनी स्टैट्यूटरी एक्ट और समथिंग, एंड इट डज नॉट फॉलो, मतलब कोई भी जो ESIC EPFO के जो भी नॉर्म्स हैं उसमें नहीं आता है. ठीक है, then informal, formal worker, organized sector, similar definitions will be there. Next we'll be looking at employee state insurance corporation. So ESIC is a statutory body under the labor ministry. So again this is important कि कौन सी ministry के अंदर आता है. They might give you कि ministry of corporate affairs में आ रहा है, या ऐसे करके they may give you certain options. So the answer for this will be labor ministry. ठीक है, लेबर से रिलेटेड है, एम्प्लॉय स्टेट लेबर से रिलेटेड है, दैट इज़ बाय लेबर मिनिस्ट्री. ठीक है, नेक्स्ट है एप्लीकेबिलिटी. क्या है इसका? इट इज़ कंपल्सरी फॉर एस्टैब्लिशमेंट्स हैविंग मोर देन 10 एम्प्लॉयज़. ठीक है, एंड इट इज़ वॉलंटरी फॉर स्मॉलर एस्टैब्लिशमेंट्स एक्सेप्ट हजार्डस इंडस्ट्रीज. ठीक है, सो अगेन दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर कि कंपल्सरी रहता है फॉर एस्टैब्लिशमेंट्स हैविंग 10 और मोर एम्प्लॉयज़, and it is voluntary for smaller establishments. ठीक है, सो नेक्स्ट है सब्सक्राइबर्स कितने हैं. employees having monthly salary less than rupees 21,000 are included in ESIC, and the premium is paid by both the employee as well as the employer in this case. ठीक है, so you need to remember that first of all it is quite compulsory for establishments having 10 or more employees. ठीक है, so the quantum needs to be remembered. नेक्स्ट बोलना है कि वॉलंटरी है फॉर स्मॉलर एस्टैब्लिशमेंट्स एक्सेप्ट हजार्डस इंडस्ट्रीज. ठीक है, सो इसको लर्न कैसे करेंगे. देखो 10 एम्प्लॉयज़, इफ़ यू सी दिस मतलब इफ़ यू लुक एट दिस ऑब्जेक्टिवली, देन अगर जैसे हमारे कोई घर का भी कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है ना, देन देयर विल बी मोर देन 10 एम्प्लॉयज़. इफ़ यू मतलब 10 से ज़्यादा लेबर ही लगती है यूजुअली, है ना. तो अगर टेक्निकली देखें सो दे दे शुड कम अंडर ESIC, है ना, बट दैट इज़ नॉट द केस सिंस दे आर इनफॉर्मल वर्कर्स, है ना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं. ठीक है, तो वैसे करके आप लर्न कर लो कि अगर घर एक कंस्ट्रक्ट हो रहा होता है तो 10-15 एम्प्लॉय लग ही जाते हैं, है ना. देन वॉलंटरी, जो दे आर वेरी स्मॉल establishments like shops etc, they it is voluntary for them to join the ESIC. However, in case of hazardous industries like those on explosives etc, it is necessary to make the employees a part of the ESIC schemes. ठीक है, क्योंकि देयर इज़ अ हायर रिस्क ऑफ लाइफ ओवर देयर, है ना. तो वैसे करके लर्न कर लो कि हायर रिस्क ऑफ लाइफ है, दैट इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू फॉर्म टू बी अ पार्ट ऑफ ESIC. नाउ एम्प्लॉयज़ का सैलरी कितना होना चाहिए, 21,000 एंड लोअर. तो इसको कैसे लर्न करेंगे हम लोग. 21,000 में आजकल जैसे टेस्ट सीरीज भी नहीं आती है,
आपने देखा होगा जो मेंस टेस्ट सीरीज है, दे जनरली कॉस्ट 21,000, मतलब 28,000, ऐसे ऐसे करके आता है ना. दे आर क्वाइट कॉस्टली, सो दैट इज परहैप्स हाउ यू कैन रिमेंबर दिस, कि 21,000, 20,000 में तो आजकल इज़ वेरी लो, है ना. एंड प्रीमियम पेड बाय बोथ, हाँ इसमें प्रीमियम विल बी पेड बाय बोथ the employee as well as the employer, because employee himself or herself will be having comparatively lesser amount of money, because monthly salary is only 21,000 or lower. ठीक है. Next we'll be looking at seasonal versus temporary um, workers, no, industries. So seasonal industries are not eligible for ESIC, as we learned earlier as well, because they'll be working for a very small period of time, है ना. तो उनको भी फिर ESIC में लाओ, दैट इज़ नॉट वेरी प्रूडेंट. ठीक है. हाउएवर जो टेम्परेरी वर्कर्स होते हैं नॉन सीजनल इंडस्ट्रीज में, दे विल बी एलिजिबल फॉर ESIC बेनिफिट्स. ठीक है. दिस इज़ ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि इन नॉन सीजनल इंडस्ट्रीज इवन द टेम्परेरी वर्कर्स विल बी एलिजिबल फॉर ब्रिंगिंग देम अंडर ESIC. नेक्स्ट है ESIC के बेनिफिट्स क्या है. So first of all, you'll get medical insurance. Then you have maternity benefit, pensions for unemployment related deaths, sickness benefit, disability payment, unemployment allowance. मतलब अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना. तो अगर फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन हु वाज अंडर ESIC, दे लूज अ जॉब. ठीक है. सो for the time period when they are looking for a job, they'll be getting unemployment allowance, है ना. दैट इज अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना. कल्याण किसका कर रहे हैं? अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयड पर्सन का. ठीक है. नेक्स्ट देख लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सही, दैट इज स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंसेस insurers. So companies which are offering only health insurance, that those are known as stand alone health insurers. ठीक है. तो इसमें एग्जांपल्स क्या है? स्टार हेल्थ केयर इंश्योरेंस. ठीक है. ऑल ऑफ दीज. नाउ टाइप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज क्या है? जो इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, इट विल बी कवरिंग वन पर्सन, वेराज जो फ्लोटर health insurance policy है, it will be covering a person and their family. ठीक है. तो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज आर प्राइमरली ऑफ टू टाइप्स. फ्लोटर है मतलब फ्लोट होके किसी पे, किसी भी मेंबर ऑफ द फैमिली पे लग सकती है ना. तो इट इज़ नॉट पर्सन डिपेंडेंट, इंडिविजुअल डिपेंडेंट नहीं है. नॉट इंडिविजुअल स्पेसिफिक बट rather for the entire family. ठीक है. और जो इंडिविजुअल है, एज द नेम सजेस्ट, इट इज़ फॉर एन इंडिविजुअल, है ना. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज बाय बेनिफिट टाइप्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फिक्स्ड बेनिफिट एंड देन वी विल बी हैविंग इंडेमनिटी बेस्ड. ठीक है. सो फिक्स बेनिफिट में क्या है? फिक्स बेनिफिट में फिक्स पेमेंट बेस्ड अपॉन इलनेसेस विल बी डन. एग्जाम्पल, SBI का जो कोरोना रक्षक पॉलिसी था, इट वॉज एम्ड एट प्रोवाइडिंग ओनली अ फिक्स पेमेंट. ठीक है. तो ऐसे नहीं कि इट विल बी कवरिंग द हॉस्पिटल एक्सपेंसेस और समथिंग लाइक दैट, के जितना खर्चा आया उतना नहीं पे करेंगे. दे विल बी जस्ट गिविंग यू अ फिक्स्ड अमाउंट, एंड ओवर एंड बिलो दैट, sorry, over that amount, it is your own responsibility to cover that payment. ठीक है. So there will be a, as the name suggests, there will be a fixed payment based upon the illness. Whereas indemnity based में क्या रहेगा? It will be covering the actual hospitalization costs, है ना. तो जो भी बिल आएगा उसका that much amount of money will be given, provided it is lower than the insured sum.
ठीक है। तो इसमें इट हैज़ बोथ कैशलेस एज वेल एज नॉन कैशलेस ऑप्शंस, है ना। और एग्जांपल्स दिया है एसबीआई का कोरोना कवच पॉलिसी, देन प्रधानमंत्री जीवन आरोग्य योजना जो 5 लाख का जो हेल्थ कवर है ना, 5 लाख का हेल्थ कवर फॉर 10 करोड़ फैमिलीज, अराउंड 10 करोड़ फैमिलीज, दैट वन कम्स अंडर an indemnity based health scheme, ठीक है। So this is important that it will be covering all the hospitalization costs up to the insured sum, ठीक है। नेक्स्ट वील बी लुकिंग एट कोरोना, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, देखो कोरोना का भी नॉट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोरोना कवच वर्सेस रक्षक में वही बताया कि वन ऑफ देम इज इंडेमनिटी बेस्ड, द अदर वन विल बी फिक्स्ड बेनिफिट, ठीक है। सो दीज नोट्स आर मेड फ्रॉम रोनाल्ड सर्स नोट्स, तो उन्हीं का जो भी हेडिंग्स सब हेडिंग्स दिया है वो यहाँ पे भी गिवन है ना। सो आई हैव जस्ट समराइज देम थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव आरोग्य संजीवनी पॉलिसी एंड सरल जीवन बीमा। सो दीज आर स्टैंडर्डाइज्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज, ठीक है। नाम क्या रहेगा, आरोग्य संजीवनी पॉलिसी एंड सरल जीवन बीमा। These are standardized health insurance policies. Now we also have Niramay health insurance for physically handicapped. So this is health insurance for persons with disabilities. ठीक है। निरामय, निरामय का मीनिंग लेट मी चेक क्या होता है। ठीक है। सो निरामय का मतलब होता है समवन हु इज फ्री फ्रॉम सिकनेस, निरामय, दैट इज फ्री फ्रॉम सिकनेस, ठीक है, या अनट्रबल्ड। ठीक है। सो एनीवन हु इज फ्री फ्रॉम सिकनेस और इज अनट्रबल्ड उसको निरामय बोलते हैं। तो निरामय हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज फॉर फिजिकली हैंडिकैप्ड और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। तो इसको लर्न कैसे करेंगे कि द गवर्नमेंट वांट्स टू इंश्योर दैट वही कि पीपल रिमेन निरामय, मतलब दे रिमेन फ्री फ्रॉम सिकनेस और अनट्रबल्ड, ठीक है। तो इट इज़ हेल्थ इंश्योरेंस फॉर PWDs। नेक्स्ट वी हैव आयुष्मान भारत और PM जन आरोग्य योजना। सो इसमें क्या रहेगा, दिस इज़ अ वेरी कॉमनली नोन पॉलिसी। इसमें वही 5 लाख रुपीज़ का हेल्थ कवर फॉर एवरी नॉट एवरी फैमिली, for nearly 10 crore families in India. And how will they be identifying these families? Via the SECC data, ठीक है। तो इसके बारे में we'll study properly अभी। ये आप लर्न कर लेना, निरामय फ्री फ्रॉम सिकनेस एंड किसके लिए है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। नेक्स्ट ये आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना, दिस वॉज लॉन्च्ड इन 2018, ठीक है। एंड कॉम्पोनेंट्स क्या है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का रहेगा एक तो कॉम्पोनेंट इसमें, एंड देयर विल ऑल्सो बी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। सो दीज विल बी द टू कॉम्पोनेंट्स इन्वॉल्व हियर। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसके बारे में देख लेते हैं। सो इट रेफर्स टू फ्री इंश्योरेंस कवर अप टू ₹5 lakhs पर फैमिली पर ईयर, है ना। एंड इट विल बी कवरिंग प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज ओनली, कोई भी जो न्यू डिसीजेज होते हैं ना, देर आर सर्टन डिजीजेज विच आर एक्सट्रीमली रेयर डिजीजेज, सो आई थिंक दोज आर नॉट कवर्ड अंडर दिस, ठीक है। इट विल बी कवरिंग बोथ प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, देन कैशलेस और पेपरलेस एक्सेस है इसके लिए। बेनिफिशरीज विल बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ SECC डेटा, सोशल एंड इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा से डिटरमाइन करेंगे, जो 2011 का डेटा है दैट विल बी यूज्ड।
Then there is no family size or age limit prescribed here. Treatment can be done at public hospitals or impaneled private hospitals. So private hospitals which have been impaneled under the प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उन दोनों पे ट्रीटमेंट करने से that person will be eligible for this insurance. ठीक है. And there will be certain agents known as प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र. Arogya Mitras, those will be the persons who will be helping the patients out. ठीक है. तो बस इतना ही है इसमें. ₹5 lakhs पर फैमिली पर ईयर का रहेगा. अगेन दिस इज नॉट एज, मतलब ये पता ही होगा आपको, है ना. नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हैज सम सब स्कीम्स एज वेल. सो वी विल बी लुकिंग एट दोज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव पीएम सेहत, which is for all residents of Jammu and Kashmir. ठीक है. प्रधानमंत्री सेहत करके है. Then there is आयुष्मान CAPF scheme also. So PM सेहत is for all the residents, ठीक है, of जम्मू कश्मीर. और सेहत, सेहत थोड़ा सा उर्दू वर्ड जैसे साउंड करता है ना. वेट, लेट मी चेक वेदर इज इट इज उर्दू और हिंदी. हाँ, सेहत इज एन उर्दू वर्ड. ठीक है. तो सिंस इट इज़ एन उर्दू वर्ड, तो जम्मू कश्मीर में, एज यू माइट बी नोइंग, देयर इज़ अ वेरी साइजेबल इस मुस्लिम पॉपुलेशन. ठीक है. तो वो उर्दू वैसे लिंक कर सकते हो आप लोग. सेहत इज़ एन उर्दू वर्ड और जम्मू कश्मीर में भी मुस्लिम्स काफ़ी सारे हैं, तो उनके लिए PM सेहत इज़ देयर. ठीक है. देन आयुष्मान CAPF scheme. So as the name suggests, it is primarily for Central Armed Police Forces and their families. ठीक है. Now we have Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. All senior citizens aged 70 or more will be covered in this. And बस इतना ही है इसमें. ठीक है. So this is irrespective of the SECC, मतलब all the senior citizens more than 70 years of age will be covered in this. ठीक है. नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी. सो इट विल, जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, इट विल बी लाइक अ मॉनिटरिंग और अ रेगुलेटरी बॉडी, है ना. सो जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसका इम्प्लीमेंटेशन विल बी ओवरसीन बाय दिस, एंड इट इज़ एन अटैच्ड ऑफिस विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ. ठीक है. और इनका गवर्निंग बोर्ड में कौन कौन रहेगा? देयर विल बी द हेल्थ मिनिस्टर, नीति आयोग CEO एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का CEO एंड सम अदर मेंबर्स एज वेल. ठीक है. तो बस इतना पता होना चाहिए. नेक्स्ट वी विल बी लुकिंग एट फंडिंग एंड कॉस्ट शेयरिंग ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. सो इट विल बी वेरिंग स्टेट टू स्टेट. ठीक है. सो यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर दिस पोर्शन प्रॉपरली, मतलब इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट. So now we are looking at general insurance other than health insurance. So there are various types of general insurance. For example, आपका जो vehicle है उसके लिए हो सकता है. Then fire अगर लग जाए उसके लिए there is a separate insurance. Then you also have agriculture के लिए farmers also have insurance for their crop. ठीक है. So one example of that is प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, है ना. नोडल मिनिस्ट्री कौन है? एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, बिकॉज फसल के बारे में रहेगा ये, है ना. सो द नोडल मिनिस्ट्री हियर विल बी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. देन इट विल बी कवरिंग क्रॉप लॉसेस ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज़. सो कुछ भी नेचुरल कैलामिटी हुआ, देयर माइट बी क्रॉप लॉस एंड दैट विल बी इंश्योर्ड बाय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. Premium will be paid by farmers, union government as well as the state government, and the premium rates will vary depending upon the type of crop. ठीक है. Both public and private sector general insurance companies are eligible for the same. ठीक है. This is also important that
first of all, premium rates will be will vary, and private sector can also offer this thing. मतलब जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज बोथ विल बी एलिजिबल टू प्रोवाइड प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर इंश्योरेंस, ठीक है। देन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0, so this was referring to the reforms which were brought into the pradhan mantri fasal bima yojana in 2020. Union government reduced its share of premium and it made the scheme voluntary for farmers, ठीक है। Earlier it was compulsory for them, now it has been made voluntary, and the methodology for crop assessment has been, या तो crop loss assessment has been updated as well, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही है। देन वील बी लुकिंग एट टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस फॉर प्रधानमंत्री फसल बीमा बाय एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री। तो क्या क्या टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव विंड्स पोर्टल, सो उससे क्या पता चलेगा? वी विल गेट टू नो अबाउट रेन एंड वेदर डेटा। सो देखो, एज द नेम सजेस्ट, विंड्स मतलब हवा है, हवा is related to rain and weather, ठीक है। तो this will be easy to remember. Then we have aid और सहायक ऐप, ठीक है। तो सहायक ऐप का क्या काम है? एजेंट एनरोलमेंट, ठीक है। टू हेल्प एजेंट्स, एड हेल्प करना है ना। एड या सहायक कौन होता है? एजेंट होता है, ठीक है। अगेन दिस इज क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नेम है इसका भी। देन वी हैव येस टेक मैनुअल। सो येस टेक मैनुअल का क्या काम है? क्रॉप डैमेज असेसमेंट, ठीक है। इसको कैसे लर्न करेंगे कि येस और नो, हैज़ द क्रॉप बीन डैमेज्ड, ठीक है। वो डिटरमाइन करने के लिए यू हैव येस टेक मैनुअल, ठीक है। नेक्स्ट वील बी लुकिंग एट निर्विक स्कीम। निर्विक स्कीम किसका है? एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है। ECIS, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम। ECG का ECGC, that is Exports Credit Guarantee Corporation, it will be covering nearly 90% of the loan loss, bank losses on exporter loan defaults, ठीक है। इसमें जो निर्विक है इसका फुल फॉर्म रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज सपोज टू बी के, निर्विक ऐसे है, एंड आई विल जस्ट गिव यू द फुल फॉर्म एज वेल। यहाँ पे निर्विक स्टैंड्स फॉर निर्विक, निर्यत ऋण, ऋण विकास योजना, ठीक है। तो दिस विल बी फॉर एक्सपोर्टर्स प्राइमरीली, और इसका नाम वह है क्या? ये दिस इज़ एन एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम। सो व्हाट हैपेंस जनरली इज़ दैट एक्सपोर्टर्स जो होते हैं ना, दे टेक अ लॉट ऑफ लोन, मतलब मैनी ऑफ देम टेक अ लॉट ऑफ लोन्स इन ऑर्डर टू कैरी आउट देयर ऑपरेशंस, ठीक है। तो वो क्या करेंगे? यहाँ से लोन ले लेंगे सो दैट दे आर एबल टू पे फॉर द शिपमेंट ऑफ देयर प्रोडक्ट टू फॉरेन कंट्रीज, ठीक है। उसके बाद में जब फॉरेन कंट्रीज में बिक जाएगा उनका सामान, देन दे विल बी गेटिंग बैक मनी एंड देन दे विल रीपे दैट लोन बैक टू अस, टू आवर बैंक्स, ठीक है। तो ऐसे आई विल जस्ट शो दिस टू यू वाया अ डायग्राम। सो सपोज दिस इज एन एक्सपोर्टर, है ना, इनका नाम है ई। इन्होंने क्या करा? ही वेंट टू अ बैंक एंड इन्होंने ही टुक अ लोन ऑफ सम, जितना भी पैसे का, ठीक है। इतना पैसे का लोन लेके व्हाट डिड ही डू? ही सेंट हिज गुड्स वाया शिपमेंट्स टू सम अदर कंट्री। सो फॉर एग्जांपल अफ्रीका में इन्होंने अपना शिप से, अफ्रीका नहीं, अमेरिका में भेज दिया, ठीक है। अमेरिका पहुंच गए, अमेरिका में ही सेल दिस स्टफ, उससे फिर पैसा मिलेगा इनको, यहाँ के वापस पैसा मिल गया। सो दिस मनी विल बी देन रिटर्न टू द बैंक। हाउएवर
इन केस दैट देयर अ कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं हो पाया इनसे, है ना, बिक नहीं पाया या ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, देन देयर विल बी अ लोन डिफ़ॉल्ट बिकॉज़ यू वोंट बी एबल टू पे दिस मनी, है ना, ये वाला पैसा नहीं पे कर पाएँगे। देन इन दैट केस एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन विल बी द वन हू विल बी पेइंग बैक 90% ऑफ द लोन टू द बैंक। ठीक है, सो ईसीजीसी covers up to 90% of bank losses on exporter loan defaults। ठीक है, सो यू नीड टू नो कि 90% लोन कौन पे कर देगा, ईसीजीसी। ठीक है, एंड दिस इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ठीक है, सो वाई इज दिस बीइंग डन, इन ऑर्डर टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम आवर कंट्री। एक्सपोर्ट्स प्रमोट होंगे तो क्या होगा, we'll get more foreign currency into our country। ठीक है, सो आर एक्सचेंज रेट विल बिकम बेटर, स्ट्रोंगर। ठीक है, मतलब कि रूपी विल बिकम स्ट्रोंगर, जैसे कि डॉलर्स में बेचा अमेरिका में, सो यू गेट डॉलर्स इन इंडिया, है ना। देन यू विल बी दस जो हमारा एक्सचेंज रेट है इट विल बिकम स्ट्रोंगर, मतलब रूपी ऐसे अभी जैसे 94 रुपीज़ फॉर $1 चल रहा है, तो इतना ऐसे कम होता नहीं जाएगा। ठीक है, वैल्यू विल become higher। ठीक है, so that is why exports are promoted so much। Next we'll be looking at third party motor insurance। So third party motor insurance is mandatory under the Motor Vehicles Act 1988। So again this is a very important fact कि 1988 का जो मोटर व्हीकल्स एक्ट है उसमें देयर इज़ अ नीड फॉर थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस। और इसमें क्या होगा, इट विल बी कवरिंग डैमेजेस टू थर्ड पार्टी व्हीकल्स, पर्सन्स और प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आई आर डी ए आई regulates the premiums of this। So I'll just first of all we'll try to learn कि motor vehicle acts 1988 का है। So we'll try to remember the year। So 8 दो है ना, so these two eights look like कार टायर्स, है ना, कार के टायर्स जैसा लग रहा है ये। ठीक है, तो वैसे करके आप लर्न कर लो, कार के 4 टायर्स होते हैं एंड 88 से लिंक करके लर्न कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाँ, डैमेजेस टू थर्ड पार्टी। तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल समवन ए वाज ड्राइविंग अ कार। ठीक है, ये ऐसे करके कार चला रहा था, इनका एक्सीडेंट हो गया किसी और से, बी से। ये ए है, ये बी है। ठीक है, और इनकी कार ऐसे करके डैमेज हो गई, जो बी है इनकी कार डैमेज हो गई इन दी एक्सीडेंट। ठीक है, एंड प्राइमरीली इट वाज एज फॉल्ट, द एक्सीडेंट वाज एज फॉल्ट सपोज। ठीक है, तो क्या करेंगे, ए विल हैव टू रीपे सम मनी टू बी, है ना। तो इस केस में क्या होगा, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कम्स इनटू प्ले, वेयर बाय थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ए ने ली रहेगी, है ना। ए विल बी द वन हु वुड हैव बॉट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एंड दिस इंश्योरेंस विल बी पेड टू बी, नॉट टू ए। ठीक है, ए ने खरीदी रहेगी इंश्योरेंस बट इट विल बी फॉर बी, दैट इज द थर्ड पार्टी। ठीक है, सो दैट इज हाउ दिस वर्क्स। सो नेक्स्ट देखते हैं ओन डैमेज इंश्योरेंस। सो इट the own damage insurance protects vehicle owners against theft, vandalism, accidents, fire, etc। ठीक है, तो ओन डैमेज प्रिवेंट करने के लिए है ये, है ना। फिर वी लुक एट कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ओन डैमेज इंस्ट्रूमेंट, ये दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। ये अपने खुद की व्हीकल के लिए रहता है, वेराज थर्ड पार्टी जो रहता है दैट इज़ फॉर समवन एल्सेस व्हीकल। ठीक है, नेक्स्ट है फ्री और कैशलेस ट्रीटमेंट टू रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स 2024 से। सो वी लुक एट दिस। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, दिस वॉज अ पायलट प्रोजेक्ट इन चंडीगढ़। ठीक है, एंड इट अलाउड कैशलेस ट्रीटमेंट अप टू ₹1.5 lakhs in case there is a road accident, and
ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर आया था, एंड नेशनल हाईवे अथॉरिटी वुड हैव बीन द वन हु वुड हैव इम्प्लीमेंटेड इट। ठीक है, तो बस इतना ही है कि कैश फ्री और कैशलेस ट्रीटमेंट टू रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स। लिमिट कितना है, 1.5 लाख रुपीज़ का, है ना। कैशलेस ट्रीटमेंट अप टू 1.5 लाख रुपीज़। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट्स एंड हाईवेज में, एंड नेशनल हाईवे अथॉरिटी इज द वन हु विल इम्प्लीमेंट इट, who was yeah bill implemented। ठीक है, सो दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस आपको लिमिट याद होना चाहिए कि कितना लिमिट है, 1.5 lakhs। सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस 1.5? देखो क्या होता है, ऐसे ही लर्न करने के लिए मैं कुछ भी बता रही हूँ। यूजुअली वी हैव 2 hands एंड लेग्स, ठीक है। पर क्या होगा एक्सीडेंट में, क्या हो जाएगा, जैसे कुछ टूट टूट जाएगा, है ना, तो फिर ऐसे बचता है। So, टूट के 0.5 ऐसे, ये बस लर्न करने के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, टेक टेक ड्रिवन एड-ऑन्स इन मोटर ओडी कवर। सो IRDAI allows tech based add-ons जैसे पे एज यू ड्राइव, ये सब ना ओडी कवर के अंडर ही आता है। 1 second, आई जस्ट चेक इसको थोड़ा सा। तो ये वही है, ओन डैमेज जो हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, ओन डैमेज इंश्योरेंस, उसी को ओडी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़े से यू कैन ऐड ऑन सर्टन थिंग्स कि मेरा अगर कार का ये भी ख़राब हो जाए तो आई शुड गेट दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, और ये सब ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो वही है, मोटर ऐड ऑन कवर्स बोलते हैं इनको। एंड दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, यू जस्ट नीड टू नो कि ओडी क्या रहेगा, ओन डैमेज कवर। अगर माई कार itself gets damaged, then I should be getting this amount of money। and add-ons क्या रहेंगे कि अगर जैसे बम्पर टूट गया तब भी मेरे को पैसे मिलने चाहिए, या फिर ऐसे ये सब चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट है डी टैरिफिकेशन इन चाइनीज़ इंश्योरेंस सेक्टर। सो अच्छा, सो इसमें क्या दिया है कि जो प्रीमियम होता है इन चाइना, प्रीमियम फॉर दिस थिंग मोटर व्हीकल्स, व्हीकल इंश्योरेंस, उसमें द प्रीमियम इज़ बेस्ड अपॉन ड्राइवर्स रिस्क प्रोफाइल। ठीक है, नॉट जस्ट ऑन द व्हीकल टाइप, बिकॉज इंडिया में क्या होगा कि टाइप ऑफ व्हीकल के बेसिस पे यू विल बी गेटिंग द इंश्योरेंस, है ना। वेर एज इन चाइना वहाँ पे ड्राइवर का रिस्क प्रोफाइल भी देखते हैं, मतलब कि उनका दे विल बी हैविंग अ हिस्ट्री ऑफ ट्रैफिक, जो भी ट्रैफिक हिस्ट्री रहेगा उस ड्राइवर का, कि हैज़ ही बीन रेगुलरली फॉलोइंग ऑल द रूल्स, और उनका का या तो रूल्स अच्छे से फॉलो कर रहे हैं एंड दे हैव अ गुड ड्राइविंग लाइसेंस हिस्ट्री। वेर एज यहाँ पे वही ड्राइविंग लाइसेंस हिस्ट्री विल बी द थिंग विच विल बी सीन, है ना। या फिर उन्होंने दे आर नोन फॉर कॉन्ट्रावीनिंग ट्रैफिक रूल्स। ठीक है, उस बेसिस पे ड्राइवर्स रिस्क प्रोफाइल विल बी मेड, एंड बेस्ड अपॉन दैट दे विल बी गेटिंग इंश्योरेंस। मतलब प्रीमियम उसके बेस पे रहेगा, जो इंश्योरेंस प्रीमियम रहेगा इट विल बी हायर फॉर पीपल हु ड्राइव रिस्कीली, मतलब उनके पास ज़्यादा सपोज टिकट्स हैं, ड्राइविंग टिकट्स हैं, दे हैव बीन contravening rules quite often। ठीक है, उनका प्रीमियम विल बी हायर। नेक्स्ट वील लुक एट टाइटल इंश्योरेंस। सो इट प्रोटेक्ट्स बायर्स फ्रॉम ओनरशिप डिस्प्यूट्स। ठीक है, तो वही है टाइटल, नेम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी अगेन। टाइटल इंश्योरेंस मतलब कि किसी भी प्रॉपर्टी का टाइटल के बारे में है, टाइटल मतलब ओनरशिप के बारे में है। सो इन केस आई बाय अ प्रॉपर्टी, आई मतलब कोई भी ए बायज अ प्रॉपर्टी, और उसने ये सपोज पीस ऑफ लैंड या कुछ भी खरीद लिया, है ना, बट किससे खरीदा, उसने बी से खरीदा। हाउएवर देन आफ्टर सम टाइम सी कम्स अप और बोलता है कि नहीं ये तो मेरा लैंड था, आपने किससे खरीद लिया। ठीक है, तो इस केस में दिस इज एन ओनरशिप डिस्प्यूट, है ना। इन दिस केस टाइटल इंश्योरेंस कम्स इनटू प्ले। ठीक है, इट विल बी प्रोटेक्टिंग बायर्स फ्रॉम ओनरशिप डिस्प्यूट्स।
एंड रीरा जो होता है ना, रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी। आई जस्ट राइट इट डाउन हियर, रियल एस्टेट रेगुलेशन या रेगुलेटरी अथॉरिटी। दिस इज द वन who mandates it for its builders, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्लिनिकल ट्रायल लाइबिलिटी इंश्योरेंस, है ना। सो क्लिनिकल ट्रायल्स, यू माइट बी नोइंग कि फार्मा कंपनीज जो होते हैं दे जनरली कैरी आउट क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ देयर मेडिसिन। न्यू मेडिसिन कोई भी आएगा ना, उसका क्लिनिकल ट्रायल करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, दे विल टेक अ लॉट ऑफ, जैसे 50-60 लोगों को, दे विल ट्रीट देम एज सब्जेक्ट्स एंड दे विल यूज देयर मेडिसिन ऑन देम फॉर अ definite period of time to see कि how does it affect them and is it helpful or not, ठीक है। दिस इज नोन एज क्लिनिकल ट्रायल। अभी क्या होता है क्लिनिकल ट्रायल में, सिंस न्यू मेडिसिन आर बीइंग टेस्टेड, सो देयर इज ऑलवेज अ हेल्थ रिस्क इन्वॉल्व, है ना, कि कुछ और ही ना हो जाए नई मेडिसिन खा के किसी को, है ना। तो इन दैट केस देयर इज एन इंश्योरेंस प्रोवाइडेड। सो दिस इज अ जनरल इंश्योरेंस फॉर pharma companies. It protects against legal expenses from patient damages in trials. तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पेशेंट ए करके है एंड ही इज गॉन फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स, ठीक है, टू फार्मा कंपनी, ठीक है। पर क्या होता है, इनका कुछ फिर नुकसान हो जाता है, इनका कुछ हेल्थ बिकम्स वर्स आफ्टर टेकिंग देयर मेडिसिन। तो ये क्या करेंगे, ही कैन गो टू द कोर्ट, ठीक है। कोर्ट में जाके ही मैं आस्क फॉर डैमेजेस कि मैं और बीमार हो गया हूँ, सो कंपनसेट मी समहाउ, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू कवर दीज डैमेजेस द फार्मा कंपनी विल बी हैविंग इंश्योरेंस, ठीक है। सो इट विल बी प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट लीगल एक्सपेंसेस फ्रॉम पेशेंट डैमेजेस एंड ट्रायल्स, ठीक है। नेक्स्ट है भारत गृह रक्षा एंड अदर्स। सो ये है स्टैंडर्डाइज्ड होम और फैक्ट्री इंश्योरेंस रहता है ये। अगेन आई हाईलाइट दिस, स्टैंडर्डाइज्ड है होम या फैक्ट्री इंश्योरेंस, एज द नेम सजेस्ट, भारत का गृह रक्षा मतलब घर की रक्षा करने के लिए, है ना। इट ऑल्सो कवर्स एमएसएमईज, ठीक है। इट विल बी प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट फायर, नेचुरल डिजास्टर्स, राइट्स एट्सेट्रा। एंड इसका क्वांटम मतलब कितने तक का अवेलेबल है, अराउंड 50 करोड़ तक का अवेलेबल है। बिकॉज वैसे घर तो 50 करोड़ का नॉर्मली नहीं होता लोगों का, है ना, बट फैक्ट्रीज हो सकते हैं, ठीक है। फैक्ट्रीज, एमएसएमईज, दीज कैन कॉस्ट दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। तो अप टू 50 करोड़ का इट इज कवर्ड इन भारत गृह रक्षा। नेक्स्ट वी हैव प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, ट्रेडिशनल वर्सेस पैरामेट्रिक, ठीक है। तो ट्रेडिशनल क्या है, द कंपनसेशन विल बी बेस्ड अपॉन एक्चुअल लॉस, whereas पैरामेट्रिक के केस में क्या होगा, द कंपनसेशन विल बी बेस्ड ऑन डिफाइंड पैरामीटर्स अलोन, ठीक है। सो अगेन दिस इज important, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ट्रेडिशनल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस एंड पैरामेट्रिक प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, ठीक है। और अगर हमारा एक्चुअल लॉस जितना हुआ है किसी भी प्रॉपर्टी का, उसको देख के इफ यू आर गेटिंग इंश्योरेंस, देन दैट विल बी नोन एज ट्रेडिशनल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। वेराज पैरामीट्रिक में डिफाइंड पैरामीटर्स रहेंगे, एज द नेम सजेस्ट, पैरामीटर रहेगा कि जैसे अगर अर्थक्वेक में हुआ है प्रॉपर्टी लॉस, तो कितना रिक्टर स्केल पे कितने इंटेंसिटी का अर्थक्वेक था, एंड करस्पॉन्डिंगली यू विल बी कॉम्पनसेटेड, ठीक है। Next, we also have catastrophe insurance. So, this will be protecting us against natural and man-made disasters. ठीक है, and IRDAI is the one who studies its launch for the poor. ठीक है, तो क्या नाम है, catastrophe insurance. It will be protecting against natural and man-made disasters. Next है कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड्स एंड श्योरिटी बॉन्ड्स, तो वो वी हैव ऑलरेडी डन अबाउट, मतलब इन द प्रीवियस वीडियो। नेक्स्ट है साइबर इंश्योरेंस, सो इट विल बी कवरिंग लॉसेस फ्रॉम साइबर अटैक्स। सो ये दिस इज वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है, द नेम इट सेल्फ इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। नेक्स्ट है ई आई ए, दैट इज ई इंश्योरेंस अकाउंट।
इसमें क्या रहेगा, दिस विल बी अ डिजिटल स्टोरेज फॉर इंश्योरेंस पॉलिसीज, ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। एंड इट विल हेल्प इन कन्वीनियंट ट्रैकिंग एंड रिन्यूअल ऑफ इंश्योरेंसेस। तो ई आई ए क्या रहेगा, किसी भी एक पर्सन का ई इंश्योरेंस अकाउंट रहेगा, ठीक है। इट विल बी स्टोरिंग ऑल द इंश्योरेंस पॉलिसीज बॉट बाय दैट पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द कंसेप्ट ऑफ री इंश्योरेंस। सो री इंश्योरेंस में क्या रहेगा, देखो, इंश्योरेंस कंपनी खुद के खुद के रिस्क पे भी इंश्योर करता है, ठीक है। दैट इज नोन एज री इंश्योरेंस। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, अगर कहीं पे देयर इज अ लार्ज स्केल प्रॉब्लम विच इज हैपनिंग, फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, कहीं पे ये आ गया, फ्लड्स आ गए बहुत सारा, ठीक है। फ्लड्स आ गए तो क्या होगा, एक पूरे सिटी में फ्लड्स आ गए सपोज। सो देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी डैमेज काफ़ी ज़्यादा हो गया, पूरा सिटी ही डूब गया, ठीक है। तो प्रॉपर्टी डैमेज हो गया बहुत सारा, तो यहाँ पे जो भी इंश्योरेंस कंपनी रहेगी, इट विल हैव टू पे द प्रीमियम नहीं, इट विल हैव टू पे डैमेजेस टू ऑल ऑफ दीज स्मॉल हाउसेस। जितने भी लोगों ने यहाँ पूरे सिटी में जितने भी लोगों के घर है, उन सबका, जिन्होंने भी हु माइट हैव अप्लाइड फॉर इंश्योरेंस, उन सबको दे विल हैव टू पे, ठीक है। सो दैट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर द इंश्योरेंस कंपनी, बिकॉज ये लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, ये लोग ऐसे ऑपरेट करते हैं कि 10 लोग इंश्योरेंस बाय करेंगे, उनमें से मैक्सिमम 2 या 3 लोगों का नुकसान होगा, है ना, कि 2 या 3 लोगों के घर में आग लगेगी, बाकी 10 में से 7 पीपल विल बी जस्ट बाइंग दैट इंश्योरेंस फॉर सेफ्टी पर्पसेस, ठीक है। तो दैट इज हाउ दे मेक मनी एंड दे आर एबल टू सस्टेन देमसेल्व्स। बट अब सबके साथ ही प्रॉब्लम हो गई, देन दिस विल बिकम इन, मतलब दे, it will become problematic for them to handle this situation. And for these kinds of situations, insurance companies buy an insurance for themselves, ठीक है। तो इन्होंने भी खुद के लिए भी एक इंश्योरेंस खरीदी रहेगी, कि ऐसा कोई सिचुएशन हो गया तो पैसा आ जाना चाहिए। एंड दिस इंश्योरेंस विच दे हैव परचेज फॉर देमसेल्व्स इज नोन एज री इंश्योरेंस। री मतलब फिर से, मतलब इंश्योरेंस के ऊपर इंश्योरेंस, ठीक है। So, insurance companies insuring their own risks will be known as reinsurance. And इसमें both private as well as foreign reinsurers are allowed. ठीक है, पैंडेमिक का रिस्क पूल देख लेते हैं। It refers to funds which are aimed at helping insurance companies during pandemics. ठीक है, नेक्स्ट दिस इज नॉट एज इम्पोर्टेंट बट ठीक है, आगे देखते हैं IRDAI के बारे में। IRDAI का फुल फॉर्म क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अ गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी बॉडी, है ना, एंड वही स्टैट्यूट से बना है, सो दैट इज वाई इट इज नोन एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। सो IRDAI का एक्ट कौन से ईयर में हुआ था, 1999 में, ठीक है। IRDA एक्ट 1999, उसके अंदर इट हैज़ बीन फॉर्म्ड। आई विल जस्ट राइट इट डाउन हियर, IRDA एक्ट ऑफ 1999, ठीक है। तो इसके अंडर IRDAI वाज फॉर्म्ड, ठीक है। और इसको हम लोग लर्न कैसे करेंगे, वेट अ सेकेंड, लेट मी चेक। हाँ, देखो, इसको ऐसे कर लो, IRDAI। तो अगर इफ़ यू बाय इंश्योरेंस, इंश्योरेंस से रिलेटेड है ना, देन 99% ऑफ योर वरीज विल गो अवे, ऐसे करके लर्न करने के लिए, वरीज विल go away if
you buy insurance. ठीक है. So this is just a learning aid to help you remember this. ठीक है. तो इसमें क्या रहेगा, देयर विल बी लाइसेंसेस रेगुलेशन भी, हाँ वही सब के इट विल बी issuing licenses, regulating the IR insurance companies and penalizing them as well. तो वही बेसिक काम है रेगुलेशन का. ठीक है. नेक्स्ट है, इट विल ऑल्सो बी हैंडलिंग कंज्यूमर ग्रीवेंसेस. ठीक है. तो दिस इज नॉट एज इम्पोर्टेंट, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द ईयर कि कौन से ईयर का है IRDAI, विच एक्ट वॉज इट फॉर्म्ड अंडर. ठीक है. नेक्स्ट है DSIIs. DSII का फुल फॉर्म होता है डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरर्स. सो दिस इज सिमिलर टू डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स, है ना, जैसे SBI होता है वो सब. सो दीज आर जनरली टू बिग टू फेल कंपनीज या इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनका नाम रहेगा डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरर्स, एंड दे विल हैव स्ट्रिक्टर रेगुलेशन ओवर देम सो दैट दे डू नॉट फेल ईजिली. ठीक है. नेक्स्ट है IRDAI रिफॉर्म्स फॉर सीनियर सिटीजन्स एंड HIV पेशेंट्स और कैंसर पेशेंट्स. So they'll get easier access to health insurance, and they'll be having reduced waiting periods for pre-existing conditions. ठीक है. So this is generic सा थोड़ा सा है. You just need to know this one. Just go through this once and थोड़ा सा बस पता होना चाहिए. Then IRDAI reforms में 30-day free look period rule. इसमें क्या है, इट विल अलाउ पॉलिसी रिव्यू एंड प्रीमियम रिफंड विद इन 30 days. सो फॉर एग्जाम्पल आई बॉट अ पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर माई कार सपोज. ठीक है. तो मैंने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिया अपनी कार का, बट विद इन 1 month आई फेल्ट कि नहीं मेरे को कोई और पॉलिसी लेनी चाहिए थी. सो आई एम हैविंग सेकेंड थाट्स. तो क्या कर सकते हैं, आई कैन गेट अ रिफंड इफ़ आई अप्लाई विद इन 30 days ऑफ बाइंग इट, देन आई कैन गेट अ रिफंड. ठीक है. दिस इज़ वॉट 30-day फ्री लुक पीरियड रूल इज़ अबाउट. ठीक है. सो द नेम इटसेल्फ इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी के लुक पीरियड है, अगर चाहिए तो रख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन गो फॉर अ रिफंड एंड कैंसल द इंश्योरेंस पॉलिसी. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव वन मोर रिफॉर्म, बीमा वाहक. तो बीमा वाहक कौन होते हैं, दीज आर विलेज लेवल इंश्योरेंस सेल्समैन. ठीक है. एंड दे कैन रिप्रेजेंट मल्टीपल कंपनीज. ठीक है. वाहक होता है कैरियर को बोलते हैं शायद, है ना, समवन हु कैरियर्स इंफॉर्मेशन और समथिंग. ठीक है. तो सिमिलरली बीमा वाहक मतलब इंश्योरेंस लेके जाने वाला पर्सन. ठीक है. सो दिस थिंग ऑल्सो इज इम्पॉर्टेंट. देन वी हैव बीमा विस्तार. विस्तार मतलब पूरा बड़ा, ऑल एनकम्पासिंग. ठीक है. तो विस्तार रहेगा ऑल इन वन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर लाइफ, हेल्थ, प्रॉपर्टी एट्सेट्रा. ठीक है. सो यू वोंट हैव टू मतलब एक एक चीज़ को नहीं देखना पड़ेगा. यू कैन बाय दिस वन पॉलिसी फॉर एवरीथिंग. सो द नेम इज बीमा विस्तार. देन वी हैव बीमा सुगम. ठीक है. बीमा सुगम में क्या रहेगा, वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर इंश्योरेंस रहता है ये. फीचर्स रहेंगे कंपेयर एंड बाय पॉलिसी, स्टोर पॉलिसी डिजिटली, फाइल क्लेम्स फॉर कॉम्पनसेशन. ठीक है. ये सब चीज़ें रहेंगी. सो इट इज़ सुगम. सुगम मतलब ईजी करना किसी चीज़ को. तो इफ़ यू प्रोवाइड ऑनलाइन एक्सेस देन इट विल बिकम वेरी ईजी. सो वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर इंश्योरेंस. फीचर्स वही है, कंपेयर एंड बाय पॉलिसी, स्टोर पॉलिसी डिजिटली, फाइल क्लेम्स. ठीक है. ये सब वो दीज आर नॉर्मल थिंग्स, सो नॉट इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दिस. ये इम्पोर्टेंट है कि इट इज़ कनेक्टेड टू LIC, ओरिएंटल इंश्योरेंस एंड अदर इंश्योरेंस कंपनीज एज वेल. ठीक है. नेक्स्ट है नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज, NHCX.
सो NHCX क्या है? इट इज़ जस्ट अ पोर्टल फॉर फास्टर हॉस्पिटल बिल क्लियरिंग, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज के लिए। मतलब हेल्थ के क्लेम्स, मतलब हॉस्पिटल में इफ़ यू फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है ना? तो अगर इफ़ आई गो टू द हॉस्पिटल एंड मैंने कुछ भी ट्रीटमेंट कराया, तो आई विल गेट अ बिल, ठीक है। दिस बिल आई कैन अपलोड ऑन this national health claim exchange, and then I'll get the corresponding insurance money in my account, ठीक है। तो ये वही काम कर रहे हैं, नेशनल हेल्थ के जो क्लेम्स रहेंगे उनके लिए एक्सचेंज रहेगा ये, एंड इट विल बी अ पोर्टल फॉर फास्टर हॉस्पिटल बिल क्लियरिंग। नेक्स्ट है इंश्योरेंस फॉर ऑल एट ग्राम और पंचायत लेवल बाय IRDAI. So, insurance companies must cover a minimum percentage of the population in a specified number of gram sabha within a set time frame. अच्छा, सो ये बेसिकली इंश्योरेंस टारगेट देते हैं इंश्योरेंस कंपनीज को, है ना। उसी का बात हो रहा है कि IRDAI जनरली गिव्स इंश्योरेंस टारगेट्स टू डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज के, इस रूरल एरिया में यू शुड हैव दिस मच इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, ये सब, ठीक है। दैट इज ऑल व्हाट इज गिवन हियर। Next, we'll be looking at insurance progress indicators. So this is very important, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ULIPs and insurance gaps. ULIP stands for Unit Linked Insurance Plan. So it will be offering both insurance as well as savings. तो ये यूनिट लिंक्ड है, मतलब कि म्यूचुअल फंड से कुछ भी रिलेशन रहेगा इसका, ठीक है। तो इसमें वही इंश्योरेंस गैप क्या होता है? इनएडिक्वेट इंश्योरेंस कवरेज, है ना। मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 100 लोगों का पॉपुलेशन है, आउट ऑफ दोज ओनली 50 पीपल हैव बॉट इंश्योरेंस पॉलिसीज़, तो हमारा इंश्योरेंस गैप कितना हो गया? 50 लोगों का। द रिमेनिंग 50 विल बी काउंट, इसको ऐसे कर लो, दिस बिकम्स कंफ्यूजिंग। दिस इज 100 में से ओनली 40 पीपल हैव बॉट इंश्योरेंस पॉलिसीज़, ठीक है। तो जाके तो जो बाकी के जो 60 हैं, those will be our that will be our insurance gap, ठीक है, since they have not yet bought the policy, ठीक है। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान आई जस्ट ऑलरेडी टोल्ड यू। देन ULIPs जो होते हैं, दे हैव अ स्मॉल प्रोटेक्शन कंपोनेंट, thus leading to a significant insurance gap, ठीक है। इंश्योरेंस डेंसिटी इंडिकेटर्स डोंट प्रोवाइड अ कंप्लीट पिक्चर, ठीक है, दिस इज नॉट एज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है FDI लिमिट्स इन इंश्योरेंस सेक्टर्स। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है ना, तो इसमें जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, LIC जो है हमारा, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसमें अर्लियर FDI के लिए देयर वाज नो रूल, बट आफ्टर वर्ड्स वो बनाया था 20 आफ्टर 2022 द रूल फॉर 20% FDI बाय ऑटोमेटिक रूट वाज ब्रॉट इन, मतलब कि जो LIC है उसमें उसका 20% ऑफ द स्टेक कैन बी ओन्ड बाय फॉरेनर्स, सो इट इज़ बाय फॉरेनर्स एंड दैट टू ऑटोमेटिक रूट, ठीक है। नेक्स्ट है जो नॉर्मल इंश्योरेंस कंपनीज हैं एक्सक्लूडिंग LIC, उनमें कितना है? 74% बाय ऑटोमेटिक रूट कैन बी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और जो इंश्योरेंस की इंटरमीडियरीज हैं उनके लिए देयर इज़ 100% FDI अलाउड, ठीक है। इंटरमीडियरीज कौन होते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे कहीं पे भी देयर हैज़ बीन सम डैमेज, मतलब कुछ हुआ है एंड सम पर्सन हैज़ फाइल्ड अ क्लेम, सो देर दे विल बी अपॉइंटिंग एन एजेंट। इनका क्या काम रहेगा? दे विल गो टू दैट साइट, फॉर एग्जांपल कुछ कार एक्सीडेंट टाइप कुछ हुआ है, तो वहाँ पे जाके दे विल असेस कि कितना डैमेज हुआ है कार को, ठीक है। एंड ऑन दैट बेसिस दे रिटर्न बैक टू द कंपनी, रिपोर्ट बैक टू द कंपनी, एंड देन जितना भी इंश्योरेंस बनता है दे विल प्रोवाइड इट टू द पर्सन हु हैज़ फाइल्ड फॉर द क्लेम, ठीक है। तो दिस पर्सन, दिस विल बी नोन एज द सर्वेयर और द एजेंट,
ठीक है, दिस विल बी एन इंटरमीडियरी। ठीक है, सो इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज 100% दे कैन बी फॉरेनर, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100% हो सकता है इनके केस में। इंश्योरेंस कंपनीज के केस में नियरली 74% हो सकता है, एंड LIC के लिए 20% ओनली। ठीक है, नेक्स्ट है सेफ गार्ड्स फॉर इंक्रीज FDI। So, the majority of the directors and key management should be resident Indians, है ना। इवन दो इन्होंने FDI लिमिट्स बढ़ा दिए हैं गवर्नमेंट ने, बट दे हैव पुट सम सेफ गार्ड्स एज वेल। सो फर्स्ट ऑफ द सेफ गार्ड इज दैट मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स एंड द मैनेजमेंट शुड बी रेजिडेंट इंडियंस। ठीक है, 50% ऑफ द डायरेक्टर्स शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, and कुछ परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट्स शुड बी retained as a general reserve। ठीक है, फॉर emergency purposes। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस, कि कितना कितना बोला है, एटलीस्ट 50% ऑफ द डायरेक्टर्स, मतलब आधे डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, प्लस मोस्ट ऑफ द मैनेजमेंट शुड बी comprising ऑफ रेजिडेंट इंडियंस। ठीक है, एंड जनरल रिजर्व also has to be maintained। Next, we will be looking at composite license and reduced GST। So, अच्छा, पार्लियामेंट्री कमेटी के सजेशंस थे। अभी प्रेजेंट सिस्टम क्या है, देर आर सेपरेट लाइसेंसेस फॉर लाइफ, जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, at present we have separate licenses। If you want to open a life insurance company, you will require a separate license, and if you want to open a general insurance company, a separate license will be required। ठीक है, बट पार्लियामेंट्री कमेटी ने क्या रिकमेंड किया है, दे हैव रिकमेंडेड अ कंपोजिट लाइसेंस फॉर ऑल द थ्री सर्विसेज। ठीक है, सो दिस विल रिड्यूस द कॉस्ट फॉर बोथ कंपनीज एज वेल एज द क्लाइंट्स। ठीक है, moreover they have suggested to reduce the GST on insurance products from 18% to 5%। ठीक है, so these are just suggestions, है ना। so you just need to know these, and this might help you in the mains examination। ठीक है, कि और फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे कर सकते हैं, तो वे फॉरवर्ड वगैरह में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं इसको, कि पार्लियामेंट्री कमेटी हैज़ कम अप विद द फॉलोइंग सजेशंस। ठीक है, तो ये वे फॉरवर्ड में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज के बारे में बात कर रहे हैं। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस यहाँ पे, बट वील अगेन लुक एट दिस। तो क्या रहेगा, जो इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज कैन बी ऑफ वेरियस काइंड। सो वी कैन हैव बैंकर्स, agents, brokers। ठीक है, so these will be the people who will sell that insurance policy to the person, to clients। ठीक है, so इंश्योरेंस एजेंट और ब्रोकर में क्या फ़र्क रहेगा, इंश्योरेंस एजेंट जो रहता है ना, that will be the person who will be selling policies of only a single company। ठीक है, whereas इंश्योरेंस जो ब्रोकर रहेगा, दैट पर्सन विल बी सेलिंग पॉलिसीज ऑफ मल्टीपल कंपनीज। ठीक है, एजेंट मतलब एजेंट ऑफ अ सिंगल कंपनी, वेर एज ब्रोकर इज द पर्सन हु इज सेलिंग पॉलिसीज ऑफ डिफरेंट कंपनीज। ठीक है, ये याद रखना आप। देन वी लुक एट डायरेक्ट ब्रोकर्स, री इंश्योरेंस ब्रोकर एंड कंपोजिट ब्रोकर्स, एंड ऑल्सो बैंक अश्योरेंस। ठीक है, सो इसमें देखते हैं डायरेक्ट ब्रोकर क्या होता है। सो डायरेक्ट ब्रोकर इज समवन हु सेल्स लाइफ और जनरल और हेल्थ पॉलिसीज ऑफ मल्टीपल कंपनीज। ठीक है, तो ये वो यहाँ पे हमने जो पढ़ा था, इट इज़ द सेम थिंग। नेक्स्ट वी हैव री इंश्योरेंस ब्रोकर। सो री इंश्योरेंस के बारे में वी हैड रेड अर्लियर, है ना, कि इट रेफर्स टू द इंश्योरेंस विच इज़ बीइंग बॉट बाय द इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, तो वही हो गया, री इंश्योरेंस ब्रोकर विल बी समवन हु सेल्स इंश्योरेंस ऑफ मल्टीपल कंपनीज। ठीक है, देन वी हैव कंपोजिट ब्रोकर। कंपोजिट ब्रोकर का क्या काम है, दे विल बी डूइंग बोथ डायरेक्ट एंड री इंश्योरेंस ब्रोकरिंग, दोनों काम कर रहे रहेंगे ये। डज बोथ डायरेक्ट
and reinsurance brokering. ठीक है, then we also have bank assurance. कंपोजिट का वो, दिस इज अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है ये. कंपोजिट मतलब कंबाइंड, दोनों चीज़ें हो रही है. बैंक अश्योरेंस इज व्हेन अ बैंकर सेल्स इंश्योरेंस पॉलिसीज. ठीक है, यू माइट हैव सीन के जो बैंक्स है ना, फॉर एग्जांपल एसबीआई वगैरह, दे आल्सो हैव सम ऑफ देयर ओन इंश्योरेंस पॉलिसीज. ठीक है, तो उसको बैंक अश्योरेंस के अंडर काउंट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है एफडीआई की कैटेगरीज. सो इट इज़ प्रोहिबिटेड, ये सब चीज़ों में प्रोहिबिटेड है. रुको, अच्छा, हाँ, वी आर डन विद इंश्योरेंस. दिस इज ओवरऑल. ये नेक्स्ट चीज़ आ गई है. ये जो एफ डी आई होता है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो कहाँ कहाँ पे प्रोहिबिटेड है. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इट इज़ प्रोहिबिटेड इन टोबैको कंपनीज, कसिनोज, न्यूज़ टीवी चैनल्स, इन सब में प्रोहिबिटेड है. देखो, न्यूज़ टीवी चैनल्स में क्यों प्रोहिबिटेड है? टू प्रिवेंट जो बाहर के एलिमेंट्स है फ्रॉम इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन इन आवर कंट्री. ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ प्रोहिबिटेड इन न्यूज़ टीवी चैनल्स. देन टोबैको और कसिनोज, कसिनो वगैरह में बेटिंग होता है, इन सब चीज़ों में तो इट इज़ नेचुरली प्रोहिबिटेड. इवन टोबैको में भी सिन गुड है, दैट इज़ वाई इट इज़ प्रोहिबिटेड हियर एज वेल. हाउएवर, अगर विद गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए. ठीक है, डू नॉट लुक एट दिस, वील डू दिस इन द नेक्स्ट वीडियो. देयर सीम्स टू बी अ मिसप्रिंट हियर. ठीक है, डू नॉट बॉदर विद दिस. सो वी आर डन विद इंश्योरेंस. ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर हैज़ बीन completed. So thank you. Kindly like, share and subscribe to my channel if you found this video helpful. You can also follow my Telegram channel for any updates. Thank you.